Union Home Minister Amit Shah pays tribute to martyrs in Pulwama today. Also interacts with CRPF Jawans last night. Concludes his J&K visit, during which he unveils development projects for Kashmir, extends hand of friendship to Kashmir's youth. Vigilance Awareness Week being observed starting today. Theme this year is Independent India at 75, Self-Reliance with Integrity. PM Modi says country is moving forward with zero tolerance against corruption. Vigilance team of NCB to probe corruption allegations against Officer Sameer Wankhede based in Mumbai drugs case. Eyewitness had level allegations on sworn affidavit. Bombay High Court hearing on Aryan Khan's bail appeal in the drugs case today. World leaders condemn with alarm news of military takeover in Sudan. Army takes reins of government after deposing interim government in Sudan. Soldiers arrest most of the members of Sudan's cabinet, even as opponents of the takeover take to the streets, where gunfire and injuries are reported. And cricket in ICC Men's T20 World Cup, Pakistan to face New Zealand today, defending champions West Indies to take on South Africa. Hello and welcome to this edition of the news. I'm Rukmana. Top story. Vigilance Awareness Week 2021 is being observed today on till the 1st of November. The theme this year is Independent India at 75, Self-Reliance with Integrity. Self-reliance and integrity are the two ideals which need focus, as they are important for achieving all-round progress and development. Officials at various departments, including the Central Vigilance Commissioner Suresh Patel, took oath on the occasion. हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति, भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए। On Vigilance Awareness Week, President Ramnath Kovind in his message to the nation said, I quote, "As a nation we have had a long and well-established tradition of integrity and ethics. It is our responsibility as citizens to reaffirm these ideals as we strive towards national development and self-reliance. It is the duty of all citizens to be vigilant and to combat corruption in every sphere of life." President Kovind expressed happiness to see that the Central Vigilance Commission is taking the necessary steps to bring citizens together to strengthen our commitment towards progress and self-reliance while remaining rooted in our ideals. The President extended greetings to all those associated with the organization of Vigilance Awareness Week at Central Vigilance Commission and wished the campaign every success. Vice President Venkaiah Naidu also in his message said, I quote, "A self-reliant India is a dream for all her citizens, and such a dream can only be fulfilled with the participation of all. I have faith that everyone would adopt integrity and ethics in their daily life as we move in our journey towards self-reliance." The Vice President expressed the hope to see all citizens and stakeholders collectively participate in large numbers in the fight against corruption. The Vice President added that we need to come together to reiterate the ideals of integrity, transparency and accountability and strive towards embracing the values that have guided us in our journey so far. He commended the Central Vigilance Commission for their efforts in combating corruption and conveyed best wishes for the success of Vigilance Awareness Week 2021. Prime Minister
Prime Minister Narendra Modi, also in his message to the nation on Vigilance Awareness Week, said, I quote, I am happy to know about the Vigilance Awareness Week being organized by the Central Vigilance Commission from the 26th of October to the 1st of November 2021. People's hard work, awareness and sense of responsibility play an important role in India's development journey. Today, India is making big resolutions and also achieving them. India has gained a new confidence on the world stage with people's participation and collectivism. The selection of Independent India at 75, Self-Reliance with Integrity as a theme of Vigilance Awareness Week by the Commission is commendable. India is moving ahead on zero tolerance against corruption since 7 years with Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas mantra. Prime Minister Narendra Modi today said that with the blessings of the people, Bharatiya Janata Party has got an opportunity to serve across several states and at the center. He said, a key reason behind this trust of the people is a stellar role played by generations of Karyakartas who have devoted their lives to the party and nation building. PM Modi further said that Namo app has a very interesting section known as Kamal Pushp that gives an opportunity to share and know about inspiring BJP Karyakartas from the Jan Sangh days to the present, who toiled to popularize the party's ideology. He urged BJP workers to contribute and enrich this section. The Bharatiya Janata Party has embarked upon an exercise to document the contribution of Jan Sangh and BJP activists in the incidents that shaped India's destiny. The initiative, Kamal Pushp, seeks to highlight the stories of selfless sacrifice without seeking any limelight. Prime Minister Narendra Modi has asked people through the Namo app to share such stories by way of the website or video links, old newspaper cuttings, old photographs, or by penning their contribution and uploading it on the app. The Namo app has documented contributions by S. Mallikarjunaya, Devendra Shastri, Amar Shahid Babu, Abhilashi, Chamanlal Gupta, who helped build the Jan Sangh in Karnataka, Uttar Pradesh, Punjab and Jammu and Kashmir respectively. Prime Minister also tweeted about Pandit Devendra Shastri, a freedom fighter from Uttarakhand. He said Shastri ji was a beacon of principled politics in all his life. He also shared a link to know more about the selfless soul on Kamal Pushp module of Namo app. He also shared information about Mallikarjunaya, who toiled all his life through selfless hard work to popularize the BJP in Karnataka. PM Modi asked people to know more about this inspiring BJP worker on the Kamal Pushp module of Namo app. Home Minister Amit Shah paid tribute to martyrs at the Pulwama War Memorial this morning. He paid tribute to the 40 CRPF Jawans who were martyred in 2019 Pulwama terror attack. Lieutenant Governor Manoj Sinha was also present on the occasion. He laid a wreath at the memorial, paying tribute to the martyrs of the 2019 Pulwama terror attack. Home Minister Amit Shah also planted a sapling in Pulwama.
Home Minister Amit Shah stayed at a CRPF camp at Lithpura in Pulwama last night. He spent the night with the Jawans there and shared their problems. The Home Minister expressed his gratitude to the CRPF and other security forces for ensuring that there was no bloodshed after Article 370 was revoked in August 2019. Moving on now to an update on the COVID-19 situation from across the country. The recovery of 15,951 patients in the last 24 hours has increased the cumulative tally of recovered patients to 3,35,83,318. Consequently, India's recovery rate stands at 98.19%. The recovery rate is currently at its highest peak since March 2020. 12,428 new cases were reported in the last 24 hours. The active caseload now remains below the 2 lakh mark and is presently at 1,63,816, which is the lowest in 238 days. Active cases account for less than 1% of total cases, presently constituting 0.48% of the country's total positive cases, which is the lowest since March 2020. The testing capacity across India continues to be expanded. India has so far conducted over 60.19 crore cumulative tests, while testing capacity has been enhanced. Weekly positivity rate at 1.24% remains less than 2% for the last 32 days. The daily positivity rate reported to be 1.10%. The daily positivity rate has remained below 2% for the last 22 days. India's COVID-19 vaccination coverage has crossed 102.94 crores. Cumulatively, 102 crore 94 lakh 1,119 beneficiaries have been vaccinated so far under India's largest vaccination program. More than 64 lakh 75,000 vaccine doses have been administered till 7 p.m. On Monday, more than 107.22 crore vaccine doses have been provided to states and union territories, with more than 12.37 crore balance and unutilized vaccine doses still available with states and union territories. It's time now for a short break. We'll be right back. More up ahead here on DD India. Stay tuned. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India.
Welcome back after the break. Moving on now, Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister of Health and Family Welfare, is addressing a press conference on PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Let's go live there. PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया। ये देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है। इस योजना के मुख्य बिंदुओं को और उजागर करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं। मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करती हूं। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार जी का भी स्वागत करती हूं। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अतिरिक्त सचिव एवं एमडी एनएचएम विकासशील जी का भी इस सभागार में स्वागत करती हूं, जो कि पहले एक प्रस्तुति देंगे। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तरी का सिलसिला। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आप प्रेजेंटेशन करो, उसके पहले मैं थोड़ी पूरा कर। जी सर। धन्यवाद मित्रों। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा किया है। उसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस में सरकार, मीडिया, राज्य सरकार, सभी स्वैच्छिक संस्थाएं और नागरिक, सभी लोगों का सामूहिक प्रयास से ये परिणाम आया है। इसलिए आप भी अभिनंदन के अधिकारी है ही। आज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के विषय में आपको बताना है। उसके पहले मैं आपके सामने ये विषय अवश्य रखूंगा कि कोई भी देश को समृद्ध होना है तो ये देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं। इस सोच पर मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा, टोटल में सोचा। देखो, देश का नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए प्रिवेंटिव केयर के लिए भी भार दिया। स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योगा, ये सब प्रिवेंटिव केयर के लिए आवश्यक है। वहां से भारत के नागरिकों की हेल्थ अच्छे बने, हेल्दी नेशन बने, उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। माता, उसके बेटे, नवजात शिशु से लेके छोटी उम्र के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। जब आपको हेल्थ
केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। मेडिकल यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट की सीटें लगभग नियरेस्ट डबल हो गई और आगे बढ़ रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो पूरी करने के लिए अभियान चला। जो मैंने कहा टोटल अप्रोच के साथ कैसे काम होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और देश में बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो अमीर के यहां भी आती है, गरीब के यहां भी आती है। देश के नागरिकों को सस्ता इलाज मिले, इसलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अमल हुआ। 10 करोड़ फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज दिन तक 5 लाख तक की मर्यादा में ट्रीटमेंट मिली। छोटी बात नहीं है। जिस हॉस्पिटल में चार्ज ज्यादा होता है, या तो ऐसा मानते थे कि गरीब लोग वहां ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, एक जगह पे देश के सुखी व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति की ट्रीटमेंट होती हो, वही हॉस्पिटल में देश के गरीब परिवार के व्यक्ति की भी ट्रीटमेंट होती हो, ये सुनिश्चित किया। लोगों को सस्ती दवा मिले, क्योंकि डायग्नोसिस, कंसल्टिंग के अलावा 60% खर्च मेडिसिन पर होता है। सारे देश में 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चलाया, वहां एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। अच्छी क्वालिटी मेडिसिन, कैंसर की कोई मेडिसिन है मार्केट में, एक टैबलेट का 100 रुपीज हो, तो यहां मैक्सिमम 50 रुपीज और उसके नीचे 20, 25, 30 रुपीज में आपको क्वालिटी मेडिसिन मिल जाती है। पर डे 20 लाख से अधिक लोग जनऔषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। ये टोटल अप्रोच का परिणाम है। और उसके आगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो और कोई विशेष डिसीज हो, कोई इस लेवल का ऑपरेशन करना हो, इसलिए टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जो हमारी 7 एम्स थी, उसको आगे बढ़ा के 22 एम्स पर काम आज ऑलरेडी चालू हो गया है। कोविड क्राइसिस आई और एक कोविड क्राइसिस ने हमें शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। कहां लैप्सिस है, ये लैप्सिस को पूरा करने के लिए यस्टरडे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए की 5 साल में 5 इयर्स में 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा। और उसमें टारगेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र और नेशनल, सभी लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो। एक ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो। कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो
परीक्षण की आवश्यकता हो तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। देश में पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, जहां से दूसरे देश के नागरिक इस देश में आते हैं, हमारे नागरिक बाहर के देश में जाते हैं, वहां अच्छी तरह से टेस्टिंग हो, उसकी फैसिलिटी हो। एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिस योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पेंडेमिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा। इस दृष्टि से मैंने सोचा कि एक बार एक विस्तार से प्रेजेंटेशन आपके सामने आए, क्योंकि 5 साल तक चलने वाली योजना है। तो मेरी ये टीम, जो मीडिया की टीम हेल्थ को रिपोर्ट कर रही है, उसके पास इस स्कीम के संदर्भ में, इस योजना के संदर्भ में कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। इस दृष्टि से आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं मेरे एडिशनल सेक्रेटरी को कहूंगा, वो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शॉर्ट में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सर। साथियों, मैं अपना प्रेजेंटेशन सामान्यतः हिंदी में ही करूंगा। बीच बीच में अगर आप लोग आवश्यक समझें तो कुछ इंग्लिश का भी उपयोग मैं कर सकता हूँ। आई होप हिंदी इज ओके जी। ओके, ठीक है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, आयुष्मान भारत एक अप्रोच है जिसके अंतर्गत सरकार एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर चल रही है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2018 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में जांगला से शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत ये विजन रखा गया कि प्राइमरी, प्रिवेंटिव, पैलिएटिव, प्रमोटिव केयर और वेलनेस पर अब स्वास्थ्य संस्थाओं में फोकस किया जाए और ऐसे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स दिसंबर 2022 तक बनाकर तैयार किए जाएं। इसमें से लगभग 79,415 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अभी क्रियाशील हो चुके हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरा जो एक रिफॉर्म आयुष्मान भारत के अम्ब्रेला के तले सरकार ने किया है, वो सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना 5 लाख तक का कवर दिया जाता है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इस योजना में अब तक लगभग 2.25 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लॉन्च किया। इस मिशन के अंतर्गत देश के जितने भी अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जितनी भी लैब्स हैं, जितनी भी फार्मेसीज हैं, इन सबको सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक नेटवर्क पर लिया जाएगा ताकि नागरिक, इस प्रकार का एक आईटी डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि नागरिक इन सुविधाओं को उस सिस्टम के माध्यम से कहीं पर भी रहते हुए आसानी से एक्सेस कर सकें। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इस योजना के माध्यम से होंगे। और जैसा कि आपको अवगत है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया है, जो कि देश को आने वाली किसी भी प्रकार की महामारी या हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक योजना है। और इस योजना के अंतर्गत नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही जाएगा, साथ ही जो विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती भी दी जाएगी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाली सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत हर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। इसके अलावा करीब 64,180 करोड़ का आवंटन इस योजना के लिए अगले 5 सालों के लिए प्रावधानित है। इस योजना के क्रियान्वयन में सैचुरेशन अप्रोच को फॉलो किया जाएगा, यानी हर जिला
डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के लिए आत्मनिर्भर हो। ब्लॉक लेवल पर भी आत्मनिर्भरता, एटलीस्ट जो छोटे छोटे टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ब्लॉक लेवल से ऊपर लोगों को ना जाना पड़े। और आगे जब मैं आउटकम्स प्रेजेंट करूंगा तो आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी कि डायग्नोस्टिक्स के लिए किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार का विजन इस योजना में किया गया है। ये योजना कॉम्प्रिहेंसिव जो आयुष्मान भारत का विजन है उसके अंतर्गत विभिन्न जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उदाहरणतया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जन आरोग्य योजना, डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन सभी योजनाओं में मेडिकल एजुकेशन के रिफॉर्म्स, जहां भी जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करें और इनके माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम विकसित हो। जहां इसमें 3 मुख्य घटक इसके माने जा सकते हैं। एक है डिजीजेस का सर्वेलेंस यानी निगरानी, दूसरा है डिजीजेस का ट्रीटमेंट यानी डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट, और तीसरा है डिजीजेस की रिसर्च। तो जहां तक सर्वेलेंस का प्रश्न है, इसमें हर जिले में एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। 3382 विकास खंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी। 5 एनसीडीसी के 5 रीजनल ब्रांचेस स्थापित की जाएंगी, जो कि देश के 5 रीजन्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, उसकी जलवायु के अनुकूल के हिसाब से जिन रोगों की वहां ज्यादा प्रधानता होती है उस पर निगरानी, क्षेत्र स्पेसिफिक निगरानी रखने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 20 महानगरों में, बड़े शहरों में भी एनसीडीसी की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। हमने इस पैंडेमिक के दौरान ये देखा कि बड़े शहरों में विशेष रूप से बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होने के कारण निगरानी की व्यवस्था अपेक्षाकृत थोड़ी कमजोर है, तो उसका भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीडीसी का और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एनसीडीसी में क्लाइमेट चेंज का एक डिवीजन स्थापित होगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एक डिवीजन स्थापित होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए, उसकी कैपेसिटीज विकसित करने के लिए भी व्यवस्था एनसीडीसी में की जाएगी। एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस सर्विस की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार के बल्कि राज्य सरकारों के भी जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको ये क्षमता हो कि वे जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकें और किसी भी नए इन्फेक्शन की समय रहते पहचान कर सकें और उसकी रोकथाम की व्यवस्था कर सकें। और ये सभी जो प्रयोगशालाएं हैं ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से आपस में जुड़ी होंगी, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन अगर किसी भी लैब से आती है तो उसका एक एनालिसिस जिला स्तर पर किया जा सके और ये अंदाजा लगाया जा सके कि कहीं किसी प्रकार का कोई आउटब्रेक होने की संभावना तो नहीं है, और अगर इस तरह की कोई संभावना है तो हमारी ये क्षमता हो कि हम उस संभावना को जाकर जांच करें और आउटब्रेक्स को होने से रोकें और लोकल कंटेनमेंट्स वगैरह अगर किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो कर सकें। ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारा पूरा कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच हेल्थ में है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर एंड देन सुपर स्पेशलिटी केयर। तो इस योजना के अंतर्गत 17,700 से अधिक ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए मदद का प्रावधान है। 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। 602 जिलों में जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है, वहां 50 से 100 बिस्तर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। आप सभी ने ये देखा होगा कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर एक ही सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल होता है, और ऐसे जिलों में कई सारे ऐसे भी हैं जहां प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत ज्यादा उपलब्धता नहीं है। किसी प्रकार की महामारी या हेल्थ इमरजेंसी आने पर ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल अगर उस महामारी के मैनेजमेंट के लिए डेडिकेट होता है तो अन्य सर्विसेज बहुत विपरीत रूप से प्रभावित होती हैं, चाहे डिलीवरीज हों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हों, डायलिसिस इत्यादि हों, इन सब पर विपरीत असर पड़ता है। तो ये निर्णय लिया गया कि हर जिले में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए
कि जरूरत पड़ने पर एक अस्पताल डेडिकेटेडली महामारी के प्रबंधन के लिए डेडिकेट किया जा सके और बाकी की जो सेवाएं हैं उन्हें भी निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके। उस दृष्टि से, उस विजन से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की व्यवस्था इस योजना में है। 128 जिले जो बाकी बच जाते हैं उनके लिए भी रेफरल लिंकेजेस की व्यवस्था इस योजना में रहेगी। 15 क्षेत्रीय हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो कि सर्वेलेंस के माध्यम से आने वाली सभी जानकारियों का विश्लेषण करेंगे और आवश्यकता अनुसार अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति इमरजेंसी की बनती है, हेल्थ इमरजेंसी की, तो उसके समीक्षा करेंगे कि उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रयास हो रहे हैं कि नहीं, जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं, वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। किसी प्रकार का लॉजिस्टिकल चैलेंज है तो उसको भी इन सेंटर्स, कंट्रोल रूम्स के माध्यम से एड्रेस किया जाएगा और ये पूरे देश में इस प्रकार से स्थापित किए जाएंगे कि हर राज्य या हर 1-2 राज्य के पीछे एक कंट्रोल रूम स्थापित हो। 12 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स 100 बिस्तर के बनाए जाएंगे। इनमें परिकल्पना यह है कि ये संस्थान जो जिला स्तर के संस्थान हैं उनके लिए ट्रेनिंग साइट्स और मेंटर इंस्टीट्यूशंस का काम करेंगे और इनमें महामारियों से रिलेटेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा की व्यवस्था होगी। 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स भी इस योजना में प्रावधानित किए गए हैं। ये WHO के नॉर्म्स के मुताबिक अति आधुनिक कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स होंगे जिसमें एक फ्लीट में 33 कंटेनर्स होंगे और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थान पर जहां पर चिकित्सकीय सुविधाएं अपेक्षाकृत कमजोर हैं वहां पर इन्हें एयर के माध्यम से, ट्रेन्स के माध्यम से या रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके प्रभावित क्षेत्र में तुरंत डिप्लॉय किया जा सकेगा ताकि नागरिकों को सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। रिसर्च के दृष्टिकोण से देश में ICMR की 80 वायरल डायग्नोस्टिक लैब्स अभी कार्यरत हैं। उनमें गैप एनालिसिस करके इन सभी लैब्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 15 नई बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब्स स्थापित की जाएंगी और 4 नए NIVs, अभी देश में केवल एक ही NIV है पुणे में, उसी प्रकार के 4 नए NIVs देश के विभिन्न उत्तर, पूर्वी, दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए स्थापित किए जाएंगे। एक नया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ स्थापित किया जाएगा जो कि एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के इंटरैक्शन को सतत रूप से स्टडी करेगा ताकि किसी भी प्रकार की जूनोटिक डिजीज का ट्रांसमिशन अगर कहीं होने की संभावना है तो उसकी रोकथाम भी की जा सके, उसका पूर्वानुमान किया जा सके। और एक WHO CRO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए एक रिसर्च प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा जिसमें इस रीजन के जो अन्य देश हैं उनसे भी इनपुट्स लेंगे और उनको टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम भी किया जाएगा। तो अब बहुत संक्षेप में जो आउटकम्स हम 5 साल की अवधि में इस योजना के माध्यम से देखते हैं उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। जैसा कि पहले मैंने बताया, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स देश में स्थापित होंगे जिसमें 12 पैकेजेस कॉम्प्रिहेंसिव रेंज की एक सर्विस मिलेगी और इन सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर टेलीकंसल्टेशंस की सुविधाएं भी अवेलेबल होंगी ताकि लोग डॉक्टर से और विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह परामर्श प्राप्त कर सकें। शहरी क्षेत्रों में जो 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे उनमें हर एक में एक डॉक्टर, एक नर्स और हेल्थ वर्कर्स तैनात होंगे। हमने ये पैंडेमिक के टाइम में देखा कि शहरी क्षेत्रों में हमारी सर्वेलेंस, निगरानी और आउटरीच की कैपेसिटीज अपेक्षाकृत कम है, तो उनको मजबूत किया जाएगा। डायग्नोस्टिक्स के लिए ये परिकल्पना है कि सब सेंटर लेवल पर 14 तरह के टेस्ट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर 63 तरह के टेस्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 97 तरह के टेस्ट और जिला स्तर पर 134 तरह के टेस्ट नागरिकों को निःशुल्क प्राप्त होंगे। इसमें कमोबेश सभी जो एसेंशियल टेस्ट हैं जो देश में प्रेवलेंट बीमारियां हैं उनके लिए और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की डायग्नोस्टिक्स और इसके अलावा जो रूटीन में इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता होती है वो सभी कवर्ड हैं। हर जिले में एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी जिसमें एक्सरे, CT स्कैन, कल्चर सेंसिटिविटी स्टडीज, लीवर फंक्शन टेस्ट,
किडनी फंक्शन टेस्ट, RT-PCR, एंटीबॉडी टेस्टिंग एक्सेट्रा, इन सभी की व्यवस्था होगी। और ये लैब्स न सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगी बल्कि सर्वेलेंस के लिए पानी की जांच, खाने की जांच, इस तरह की सभी प्रकार की सुविधाएं इस लैब में हर जिले में विकसित होंगी। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स 602 जिलों में बनेंगे, जिसमें करीब 35,200 बेड्स क्रिटिकल केयर, जिसमें ICU, HTU एक्सेट्रा शामिल हैं, उनकी क्षमता विकसित होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 128 जिलों के लिए रेफरल लिंकेजेस की व्यवस्था होगी और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में हर एक में 150 बेड्स के हिसाब से 1800 बेड्स सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा के लिए, क्रिटिकल केयर इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए अवेलेबल किए जाएंगे। 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। सर्वेलेंस के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से लेकर ब्लॉक, जिला, मेट्रोज, स्टेट, रीजनल, नेशनल, इस लेवल की जो भी लैब्स हैं उन सभी, और इसके अलावा जो 50 पोर्ट्स ऑफ एंट्री पे पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इन सभी को एक नेटवर्क के तौर पे जोड़ा जाएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि देश के किसी भी भाग में जो 33 आइडेंटिफाइड बीमारियां इस प्लेटफॉर्म पर मॉनिटर की जाती हैं, उनमें से किसी भी बीमारी का कहीं भी देश में कोई केस होता है तो उसके बारे में सबको समय रहते से तत्काल इस पोर्टल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल सके और उनसे बचाव, उसकी रोकथाम और अगर आवश्यकता पड़े तो डायग्नोसिस और उपचार की व्यवस्थाएं तुरंत ठीक की जा सकें। रिसर्च की दृष्टि से, जैसा कि मैंने बताया, इनहैंस लेबोरेटरी कैपेसिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ जूनोटिक डिजीजेज, यानी जो बीमारियां जानवरों से मनुष्यों में ट्रांसफर होती हैं, जो पोटेंशियल होता है, उस तरह की जो भी बीमारियां हैं हमारे देश में, जिस तरह की इन रोगों का जो भी इतिहास है और जो ग्लोबली पूरे विश्व में जहां जहां इस तरह का इंटरेक्शन है, उन सब को समझकर देश में उसके प्रति बचाव और पूर्वानुमान की व्यवस्था रिसर्च के माध्यम से हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। इन संस्थानों से एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर भी जनरेट होगा, जो कि जिनके माध्यम से इस प्रकार का एनालिसिस और स्टडीज की जा सकेंगी। रिसर्च के माध्यम से डिजीज रिस्क मैप्स भी जनरेट किए जा सकेंगे, ताकि हम ये विशेष क्षेत्रों में विशेष प्रकार की निगरानी की व्यवस्था कर सकें। और इस पूरे इकोसिस्टम के माध्यम से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम आत्मनिर्भर रहें। ये कुछ जो वित्तीय संसाधन इस योजना के अंतर्गत हैं, करीब 54,000 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट्स के लिए हैं, जो कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिसमें 5 कंपोनेंट्स हैं: आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स। ये राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्रियान्वित होंगे। इसमें जो नीचे कमेंट्स हैं, जो रूरल एरियाज के 10 स्टेट्स के लिए इस योजना में प्रावधान है, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं। बाकी की स्टेट्स के लिए भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और 15वें वित्त आयोग की जो राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है, उसके माध्यम से गैप्स की फिलिंग की जाएगी। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में भी प्रथम फेज में हमने 11 स्टेट्स को लिया है और बाकी स्टेट्स में 15वें वित्त आयोग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यवस्था होगी। ये सेंट्रल सेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, 12 सेंट्रल हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सर्वेलेंस, मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स, पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर व्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था, कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स, ICMR के नए इंस्टीट्यूशंस, NCDC की नई ब्रांचेस आदि के लिए 9,339 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।
यहाँ दो विषय मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक विषय है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 134 टाइप के रिपोर्ट टेस्टिंग हो पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पेशेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और कई अपने लैब टेस्ट के लिए उसको कहा जाता है, तो सामान्य तौर पर मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग, उसको दिक्कत होती है। तो उसमें 134 टाइप के टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लैब में विना मूल्य हो सकेगा। दूसरा, पहली बार ये साउथ एशिया में हो रहा है। वो एकदम देश में 2 कंटेनर ट्रेन तैयार रखी जाएगी। कंटेनर में सारी हॉस्पिटल की सुविधा तैयार होगी। कोई भी पेंडेमिक की सिचुएशंस हो, कोई जगह पे डिजास्टर हो, कोई जगह में ऐसी ही तुरंत ही रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ बाय रेल से मूव की जा सकेगी, बाय एयर से भी मूव की जा सकेगी। तुरंत ही हम 24 घंटे में कोई जगह पे कोई साइक्लोन आ गया, ऐसी स्थिति में आवश्यकता खड़ी हो गई, तो 24 घंटे में हम वहाँ रेडी हॉस्पिटल पहुँचा सके, इसलिए कंटेनर हॉस्पिटल भी खड़ी की जाएगी। वो परमानेंट सेटअप रहेगा। उसका एक केंद्र रहेगा चेन्नई और एक केंद्र रहेगा दिल्ली। 2 लोकेशन पर रहेंगे। नॉर्थ इंडिया में यहाँ से पहुँच जाएंगे। साउथ इंडिया में ऐसी कोई स्थिति हो गई तो चेन्नई से मूव हो सके, इस दृष्टि से सारी व्यवस्था कुल मिला के की गई है। Yes. सर, मैं आयुष्मान हूँ। ये सवाल कोवैक्सीन को लेकर है। हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कोवैक्सीन का अप्रूवल। आज WHO में मीटिंग भी आपने डीजी से बात की थी सर, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है और क्यों ये डिले हो रहा है सर? कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यूएल? WHO की एक सिस्टम है, उसमें उसकी टेक्निकल कमेटी ऑब्जर्व करती है, उसके बाद एक दूसरी कमेटी ऑब्जर्व करती है और टेक्निकल कमेटी ने उसको पॉजिटिव दे दिया है। उसकी ऊपर वाली कमेटी 26 को आज ही मिल रही है। तो ये कमेटी के जो डिसीजन होंगे उसके आधार पर कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल होगा। कानपुर में टीका वायरस का प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दौड़ लगा वहाँ पे ठीक करने के लिए। तो व्हाट इज द रीसेंट इंफॉर्मेशन? स्वाभाविक तौर पर ऐसा कोई डिसीज मिले तो प्रशासन उसके लिए तुरंत ही पहुंचे। एक बात है, जिका वायरस वो मॉस्किटो से फैलता है, ऐसी स्थिति में एक आपकी बात सही, एक केस पाया गया है और प्रशासन उसको देख रहा है। Request the media friends to concentrate the questions on the PM Ayushman Bharat health infrastructure, please. 107. सर, स्वास्थ्य मंत्रालय से ही सवाल है, आपके मंत्रालय से जो है AY4.2 एक नया वेरिएंट जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, उसके केसेस तो कितना खतरनाक ये मानते हैं और आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? उस पर अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलके उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। Question number, at 62, please. ये सर, आपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना खर्च किया जा रहा है और आगे 5 साल की प्लानिंग है, लेकिन पिछले जब से कोरोना पैंडेमिक सेकेंड वेव आई है उसके बाद से आज तक अभी तक भी लोगों की मौतें हो रही हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया गया सेकेंड वेव के बाद कि अभी मौतें क्यों हो रही हैं? बीमार होना तो ठीक है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनका इलाज
अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, या क्या रीजन है कि आज भी अभी डेटा आया है कि कल 356 मौतें हुई हैं सर, और आज से 4-5 महीने पहले पब्लिक को बताया गया कि सितंबर अक्टूबर में कोरोना की 3rd वेव आएगी। अभी तो अक्टूबर खत्म हो रहा है, तो ये सरकार को पहले से ही कैसे पता लग जाता है कि 4 महीने बाद वेव आने वाली है? किसी को दुनिया में कौन सी वेव कब आएगी वो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो मेरी ओर से हमेशा कहता हूं कि हमें सतर्क रहना है। ये न्यू टाइप का पेंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और जो स्थिति एराइज हो, जो स्थिति खड़ी हो, उसका सामना हम साथ में मिलकर कैसे करें, और इसलिए हम सक्सेस रहे। फॉर एग्जाम्पल, आज डेवलप्ड कंट्री में भी वैक्सीनेशन के प्रति हेजिटेंसी है। आज आप सब लोगों ने, सरकार ने, सभी लोगों ने एक अवेयरनेस क्रिएट किया, हेजिटेंसी नहीं है। 75% एबव फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से हम साथ में मिलकर उसका प्रयास करें, हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यही हमारे लिए उचित है। उसके अलावा आगे क्या होगा, हाँ, आगे कोई ऐसा पेंडेमिक हो जाए तो उसका हम कैसे सामना करें, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज से 2 महीने पहले मैंने 23,000 करोड़ का कोविड पैकेज 2 डिक्लेयर किया था। जो वर्तमान समय में कोई जगह पे लैब ना हो तो खड़ी कर ले, कोई जगह पे क्रिटिकल केयर यूनिट ना हो, शायद बच्चों में आ जाए तो उसके लिए आईसीयू बेड तैयार हो, बड़ों के लिए आईसीयू बेड तैयार हो, ऑक्सीजन वहां उपलब्ध हो जाए। हमारी जिम्मेवारी यह है कि ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच पाए, उसके लिए कैसे प्रयास करें। तो ये प्रयास करने का सतत चालू है, और इसलिए ही हम उसके सामने, कोविड क्राइसिस के सामने अच्छी तरह से लड़ रहे हैं आज के दिन में। Number 102, please. Also introduce yourself. Hello. Hi, I am Maitri from the website called The Ken. I've seen the presentation, and I want to congratulate you for the fact that the dialogue of diagnostics has happened for rather the first time in such detail. While going to the field, going to block level hospitals, etc. earlier, in the past 10 years, we have noticed that the diagnostic simple blood tests, those 14 blood tests also has been very poor and non-existent, even in your home state, sir, in districts like Valsad, in Kaprada, etc., where we've been and we've checked those block hospitals. मेरा सवाल आपसे सर ये है कि आपने बहुत elaborate plan बनाया है, but what are the current challenges? I know you cannot provide data right now about the current infrastructural lag that you have rightly mentioned, but there must be thought behind making this plan. So how did that thought come about, and what were the ground level details that you took from your blocks and states? यही विषय है आज के दिन में, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप है, एक गैप को फिलफुल करने के लिए ही ये पैकेज लाया गया है। ये 64,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। दूर सुदूर क्षेत्र हो, कोई स्टेट में थोड़ी सी ज्यादा सुविधा है, कोई स्टेट में थोड़ी कम सुविधा है, उसको एनालाइज किया गया, और उसमें क्या क्या कौन सी सुविधा कम है। प्राइवेट सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर की बात है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से मिनिमम व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए। एक गैप को कैसे पूरा करें, तो ये सारा एनालिसिस से लगा कि हमें 64,000 करोड़ रुपीस खर्च करना पड़ेगा, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 90 करोड़ से 100 करोड़ तक का खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें चैलेंज का सामना कर पाएंगे। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव थॉट का ये आउटपुट है। Number 5. Hi, good afternoon, Mr. बहुत लोग क्वेश्चंस पूछने के लिए रेडी है आज। Here. डोंट वरी, आराम से बात करते हैं। नहीं, आराम से बात करते हैं, या सभी को रिप्लाई करो। Good afternoon, Mr. Manvia. Hi, Ridma from Hindustan Times. Here. नीचे. Yes. So my question is, it was quite an elaborate presentation and quite a decent plan, but mostly what we see lacking is the implementation.
So is there any monitoring mechanism in place, because health eventually is a state subject, and each time we talk about how the state's implementation at the state level is weak. So is there something that you're planning to have in place to supervise it, to ensure 5 साल में हो जाए, because we have AIIMS still not functioning? जरूरी है, 2 पार्ट है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और जहां नेशनल इंस्टीट्यूट है वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा और स्टेट में किया जाएगा। स्टेट और सेंट्रल वर्क ऑफ जॉब किसकी भी हो, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इट्स वन थिंग, बट सरकार कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन करती है तो जनता के लिए करती है और देश स्टेट से ही बनता है, इसलिए स्टेट के साथ मिलके ही कार्यक्रम आगे चलता है और सारे स्टेट के साथ बातचीत करके ये स्कीम बनाई गई है। स्टेट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट वहां खर्च, हम यहां से पैसा दे देंगे, उसका मॉनिटरिंग करेंगे और स्टेट उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये स्टेट के अंडर में है, सीधा स्टेट उसका संचालन करती है। यहां से एक प्लान बनेगा कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी क्रिएट करनी है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर प्लान बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, भारत सरकार उसको पैसा दे देगी। ये टाइप की व्यवस्था उसमें बनी हुई है और आज तक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कोविड पैकेज 1 का, उसके बाद कोविड पैकेज 2, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी योजना बने और योजना बनाने के समय पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सारी योजना में स्टेट क्या चाहते हैं, हम उसको यहाँ से रिपोर्ट देते हैं, स्टेट कहते हैं जी नहीं हमारे यहाँ ये लेप्सिस है, हमारे स्टेट में ये और रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं और साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। ऐसा एक 64,000 आपने देखा होगा, कई स्टेट में कई योजना का विशेष काम करना है क्योंकि स्टेट में गैप ज्यादा है, कई स्टेट में गैप कम है, तो कम है वहां कम पूरा करना है, ज्यादा है वहां ज्यादा करना है। एक भाग, एक क्षेत्र ज्यादा डेवलप हो जाए और एक क्षेत्र में सुविधा ना मिले तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करके आगे कैसे बढ़े, इस दृष्टि से प्लान तैयार किया गया है। 125 प्लीज। सर, नितिन न्यूज, डीडी न्यूज से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अगर आप लिस्ट देखें पैकेज का, जिसमें न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है, ज्यादातर मेडिसिन हो, हार्ट का हो या फिर ऑर्थो का है, तो क्या इसको आप रिव्यू करके शामिल करेंगे? दूसरा, जो केंद्र पैसा दे रही है, देगी 64,000 करोड़ राज्य को, क्या वो पीपीपी मॉडल पे बनेगा और क्या उसकी मॉनिटरिंग होगी, क्या ग्राउंड पे ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, इसकी व्यवस्था होगी? और 2022 तक क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी तैयार हो जाएंगे? उसमें हाँ, 2022 तक हम पूरा कर देंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पीपीपी से नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है, इसलिए गवर्नमेंट की दृष्टि से ही करना है और टाइम पे पूरा भी कर देंगे। यस, स्टेट के साथ कोई भी स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपोनेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 100% जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट है वहां 60-40 रेशियो से जाएगा। नंबर 120 प्लीज। हाँ, आज अवसर मिला है तो सभी को पूछने दो। सर 4-5 पूछ लूं? जी फिलहाल एक। क्या सर, स्नेहा फ्रॉम इंडिया टुडे। सर, मेरा सवाल ये है कि कोवैक्सिन को बच्चों के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 12 अक्टूबर को अप्रूव कर दिया था, रिकमेंडेशन पॉजिटिव थे, लेकिन अभी तक उसमें ड्रग्स कंट्रोलर का अप्रूवल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? ये बच्चों का विषय है जी। उसमें हमने पहले से ही गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि जब इस टाइप का एक्सपर्ट विषय है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसमें एक कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी ने उसको अप्रूवल दिया है और वो आगे और चेक कर रहे हैं, तो जब वो डिसाइड करेंगे तब उसके ऊपर डिसीजन होंगे। ये सब चीज़ें ऐसी है, बायोलॉजिकल भी है, बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, उसमें और दुनिया में भी क्या ट्रेंड है, दुनिया क्या करती है, दुनिया की एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हो रहा है, उसके आधार पर उस पर ये लोग डिसीजन लेते हैं।
इसलिए सरकार की ओर से उसमें कुछ कमेंट करना ये मेरी दृष्टि से थोड़ा उचित नहीं लगेंगे। Number 124. सर, प्रफुल्ल, एबीपी न्यूज से। सर, सवाल ये है कि जाइडस की जो वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिल चुका है वो अब तक रोल आउट नहीं हुई है, वो 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को दी जा सकती है, तो वो कब तक आएगी और क्या पैसों को लेकर कहीं बात फंसी कि उसके रेट तय नहीं हो पा रहे? जाइकोडी ये इंडियन रिसर्च और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, आत्मनिर्भर भारत का, और डीएनए वैक्सीन है जो दुनिया में 20 साल से उसके पर ट्रायल चल रही है और इंडियन इंस्टीट्यूट ने उसको सक्सेस करके बताया है, इसलिए हमारे लिए प्राउड है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है, सरकार के साथ बात चल रही है, उसकी प्राइस भी फिक्स हो जाएगी और वो यूज भी होना शुरू हो जाएंगे तुरंत ही, उसमें कोई ज़्यादा समय लगाने की प्रोसीजर चल रही है, पूरी होने के बाद कर लेंगे। यस। Number 4. वो डीएनए वैक्सीन में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, वो केवल यहाँ लगाया जाता है। Sorry, number 4. जी। Number 4 is. Yeah. Can I ask? Yeah. Sir, I'm from the Hindu newspaper. I wanted to know कि कंटेनर में कितने, what is the bed strength in the container जो दिल्ली और चेन्नई में रहेंगे? And sir, in Kerala, which is a state which has one of the best health indicators in the country, वहाँ पे COVID seems to be playing rogue. So I want to know what the central government's feedback is on the situation. Is it a new variant or is it an indicator of the trend that the country, are we getting a new indication of the danger that the country is in? तमिलनाडु, केरला से कोई न्यू वेरिएंट का न्यूज़ नहीं आया है। But the deaths are not coming down. So is this कोई अंदेशा है? मैं आज से जब 30,000 केस पर डे आ रहा था उस वक्त मैं केरला गया था और उस वक्त उन्होंने एग्रेसिवली वैक्सीनेशन किया और वैक्सीनेशन हो जाने से एक फ़ायदा देखा। वहाँ भी रिसर्च भी ऐसा बोल रहा है और वर्ल्ड का भी एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर ओपिनियन बना है कि वैक्सीन लग जाने के बाद सीवियरिटी कम हो जाती है और किसी को कोविड होता भी है तो आइसोलेशन हो जाते हैं, 1-2 दिन थोड़ी सी बुखार रहने के बाद वो तुरंत ही क्लियर हो जाते हैं। ये कुल मिला के केरला का हमारा ओपिनियन रहा है और आज के दिन में केरला की स्थिति अच्छी है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, एकदम केस डाउन भी हो रहा है। वो वैसे तो हो गया है, एवरेज के नियरेस्ट पहुंच गए हैं वो। जी। कंटेनर में एक कंटेनर में कितने बेड होते हैं? सर ये जो मोबाइल कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल हैं, एक अस्पताल में 22 कंटेनर और मिनिमम बेड स्ट्रेंथ 100 है, लेकिन हर कंटेनर में बेड होंगे ऐसी व्यवस्था नहीं है। कंटेनर में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं, कंटेनर्स में डॉक्टरों के बैठने की जगह भी है। तो वो जैसा कि पहले आपके समक्ष रखा गया, वो ट्रेन से भी जा सकते हैं और उनको हेलीकॉप्टर या बड़े जो हवाई जहाज़ होते हैं एयरफोर्स के, उनसे भी लिफ्ट किया जा सकता है। टोटल बेड बोले उन्होंने, एक हर कंटेनर में बेड ही रख देना ऐसा तो उचित नहीं, अलग अलग टाइप की फैसिलिटी भी उसमें चाहिए जो यहाँ बताया। लेकिन 100 बेड की ये अस्पताल होगी और उसको एक यूनिट माना जाएगा। तो 2 यूनिट है, मतलब 200 बेड, एक साउथ में रहेंगे एक नॉर्थ में रहेंगे। जहाँ ऐसी इमरजेंसी खड़ी हो गई वहाँ उसको मूव कर देंगे। जी। Number 116 संख्या बढ़ने लगी हुई। मैं आपके साथ हाई टीम में हूँ, वहाँ भी पूछ सकते हो। We'll take last 2 questions. Number 116 and Sir, number 90. सर हर्षा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत से। सर बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यूपी बिहार। सर इनके अगर गाँव को देखें तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 गाँव के बीच में एक पीएचसी है
और कई सारी जगहों पे 15 से 20 किलोमीटर के बाद एक CSC सेंटर पड़ता है, कई जगहों पे PSC जर्जर स्थिति में। सर, तो कहा जाए आपके इस आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कि जिन गाँव में PSC नहीं है या कोई लोकल सेटअप नहीं है, वहाँ पे बनेगा लोकल सेटअप? ये वेलनेस सेंटर का यही उद्देश्य है। ये कुल मिला के 2 लाख है, 1.5 लाख। उसका मतलब ये हो गया, समझ लो कि 7 लाख विलेज है, 7 लाख विलेज हुआ तो मिनिमम 5 से 6 विलेज के बीच में एक वेलनेस सेंटर हो गया। तो ऑटोमेटिक जहां कोई न कोई एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको स्ट्रेंथन करेंगे और नहीं है वहां बनाएंगे, लेकिन कोई क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं। The minister will be there with all of you for the high tea. So I'm going to ask the last question. That's number 90. And with that, with your permission, sir, we'll end the press conference. रुंझुन शर्मा, CNN News 18। मेरा सवाल सर, जो न्यू वेरिएंट आया है AY42 उसको लेकर है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं और इंदौर के सिवाय कहीं और पे भी है अभी इंडिया में? अभी उसके पर स्टडी चल रही है, ICMR और NCDC उसको चेक कर रहे हैं। सप्लाई हो रहा है सभी जगह, उसमें ये मैं वहां जवाब दूंगा। With this we end the press conference. मैं हूँ, आपके साथ हूँ। As I said, the minister, honorable minister, will be there with all of you for the high tea on the 4th floor. Please ask all the other questions from him. And thank you very much for this. And with this we. So the Union Health Minister, Dr. Mansukh Mandavia, accompanied by the Health Secretary, speaking on the PM Ayush Health Infrastructure Yojana that was unveiled by the Prime Minister yesterday at Varanasi. He said that this is an medical infrastructure Yojana that is working on the principle of a healthy nation is a fulfilled nation. He said that Prime Minister Modi, when he thought about health, he never thought in tokens but in total, and that India's goal of a healthy India is being promoted through various initiatives, starting from Fit India and various other initiatives. He also expressed in detail the every aspect of the new Yojana that was introduced in order to boost the medical infrastructure sector of India at the micro level. That's all in this edition of the news. Namaskar.